Hello students, good morning. Hope everyone is fit and fine. So today we are going to start with chapter 8, Introduction to Adobe Photoshop. Adobe Photoshop के बारे में हम लोग last class, that means in standard 7, we have already discussed. So let us discuss more details and more things about this. So first is the introduction. Adobe Photoshop है क्या? Adobe Photoshop CS3 is an image editing software. It is an image editing software. It is widely used by web designer and photographers for creating and editing image or pictures. ये मोस्टली यूज होते हैं वेब डिजाइनर, जो लोग वेब डिजाइन करते हैं, और जो फोटोग्राफर्स हैं फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, क्रिएट बनाने में और एडिट करने में images or pictures. It also allow to create special effects and optimize digital image. ये create help special effects देने में help करते हैं और optimize digital image, digitally image बनाने में help करते हैं. Now use of Photoshop. Photoshop का use कहाँ पे होता है, कैसे होता है? Various uses of Photoshop are as follows. Various uses दिया हुआ है. 4 uses are given. First, you can combine different images elements such as a photograph, scan art, text, etc. You can save them in a digital image. क्या बोले फोटोशॉप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज के साथ साथ हम लोग फोटोग्राफ्स मतलब इमेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स को, स्कैन आर्ट को या टेक्स्ट को ऐड करके एक डिजिटल इमेज फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन एडिट digital photographs by making subtle changes such as adjusting color in a scanned photographs. Color change करके उसका एक नया presentation बना सकते हो. You can apply color or patterns to your image. Colors और patterns भी हम लोग ऐड कर सकते हैं by using different brush tools. Brush tools होते हैं, उसमें different brush tools use करके हम लोग उसमें different colors और pattern भी यूज कर सकते हैं. You can take the print of your image and save them in a suitable format as per your requirement. अब वहां से हम लोग प्रिंट आउट लेके as per our requirement, हम लोग को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम लोग सेव करके या जहां पे रखना चाहिए वहां पे हम लोग रख सकते हैं. This is the use of Photoshop. Now the point is how to start Photoshop. Starting Photoshop CS3. For starting, we have to click on the start button. Then click on all programs. Then click on Adobe Photoshop CS3. That is the way you can open the Photoshop. An opening screen of Adobe Photoshop appears. जैसे तुम इसको क्लिक करोगे, एक opening screen हो जाए. Before you where you can work with your image. जहाँ पे तुम वो इमेज को लेके काम कर सकते हो, वो स्क्रीन ओपन हो जाएगा. Now let us discuss about the Adobe Photoshop components of Adobe Photoshop CS3. इसके जो components हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. The various components of Photoshop CS3 are shown and discussed below. First is the title bar. It is located at the top of the window. It is located at the top of the window, which displays the name of the application and your image file. यहाँ पे टॉप में जो रहता है वो दैट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, तुम्हारे एप्लीकेशन का नेम और उसके अंदर तुम्हारा जो इमेज है उस फाइल का नाम, ये दो चीज रहता है. देन टेक्स्ट मेनू बार. टेक्स्ट मेनू बार में क्या होता है, इट इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. टेक्स्ट मेनू बार टाइटल बार के बिल्कुल नीचे रहता है. वेरियस मेनू ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट मेनू बार. यहाँ पे मेनू बार भी हम लोग कहते हैं नॉर्मली. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी इमेजेस है उस इमेजेस जो भी टूल्स है, जो भी ऑप्शंस है उसका टेक्स्ट राइटिंग हम लोग दे सकते हैं. जैसे फाइल, एडिट, इमेज, व्यू, सिलेक्ट, ये सारे जो हम लोग करने वाले हैं वो सारे रिटन वहां पे रहता है. देन कॉन्टेक्स्ट मेनू बार. आफ्टर दैट कम्स द कॉन्टेक्स्ट मेनू बार. Below the text menu bar, you will see context menu bar. You will see various options available for selecting tools. वहाँ पे various options रहते हैं for selecting tools. Tool palettes. उसके बाद आता है tool palettes. It is located
on the left side of the screen. It is located on the left side of the screen. It provides you to various tools which you can use while working on image. Toolbar में बहुत सारे tools रहते हैं that will help you to work on the image. Image में काम करने के लिए help करेगा. Navigator palette. Navigator palette it is used to navigate within the image window. It navigate करते हैं to work within the image window. Color palette. What is the meaning of color palette? It is used to select and apply color on image. Color palette क्या है? Color palette में हम लोग image में colors apply कर सकते हैं, select करके apply कर सकते हैं. Then layer palette. Layer palette it allows you to work in various layer. हम लोग last इंटरव्यू में standard 7 में हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे बोला जा रहा है कलर पैलेट जो है वो वेरियस लेयर पैलेट जो है वो वेरियस लेयर्स में काम करते हैं. फोटोशॉप में बहुत सारे लेयर्स में हम लोग काम करते हैं, तो लेयर पैलेट अलाउज टू वर्क इन वेरियस लेयर. नेक्स्ट वी विल नो मोर डिटेल्स अबाउट टूल पैलेट्स. टूल पैलेट्स इन एडोब फोटोशॉप CS3 there are 60 tools. कितने tools हैं? 60 tools. You can select any tools in the tool palette. Tool palette से कोई भी tool तुम select कर सकते हो by pressing a single letter shortcut key. हर एक का shortcut key है, उसको select करके तो select कर सकते हो. There are 4 categories of tool in it. There are 4 categories. 60 है but उसको 4 category में divide कर दिया गया है. They are selection tool. First category is selection tool. Second, painting tool. Fourth category is path, text, shape tools. जहाँ पे path दिखा रहा है, text दिखा रहा है, and shape tool. And the fourth is the view tool. जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? View कर सकते हैं. तो these are the 4 sections made for the tool palette. Okay. The pictures are given below in the Bokoli page in page number 90. You can see every selection tools. What are the selection tools? What are the path, text, shape tools? Then painting tools and view tools. Every details are been given. You can see it and understand what are the tools and what are the differentiated. Now let us go and let us describe the shortcut keys along with the all the tools. Move tool. ये move tool means move word से समझ में आ जाता है what does move tools means. It moves selections of selected area around the screen. जो भी selected area है उसको move कराने में या move करने में help करता है screen के अंदर. The shortcut key is V. Okay. Next. Marquee selection tool. They make rectangular, ellipse, single row or single column selection. ये एक select करते हैं, तो obviously this comes in a selection tool. They allow you to select parts of the image. कुछ parts image का हर एक part को select करने में in different shape you can select from the Marquee selection tool. The shortcut key is M. कीबोर्ड में हम लोग M दबाने से जब मैटर हो तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है. नेक्स्ट lasso tool. Lasso tool which is the shortcut key is L. They make hand free polygon, straight edges and magnetic selection. ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है? हैंड फ्री होता है और पॉलीगनल होता है या मैग्नेटिक सिलेक्शन होता है. देन क्विक सिलेक्शन या मैजिक वैन टूल. यहाँ पे क्विक सिलेक्शन या मैजिक वैन टूल. इन दिस इट सिलेक्ट्स पार्ट ऑफ द इमेज ऑन द बेस ऑफ दैट कलर सिमिलरिटी और टोन वैल्यूज. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सिलेक्शन किस हिसाब से होता है? यहाँ पे सिलेक्शन होता है ऑन द कलर. जो कलर है उसको रेंज करके वो सिलेक्शन होता है. मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ इमेज विद different colors but you want to change a particular color over there. There are red, green, purple, pink, violet, indigo, every color, orange, yellow, every color there, but you want to change a particular color, maybe it is red. So you can use selection tool or your
magic wand tool to specify that color which you want to choose and select. Now crop tool, you know the word crop, it is used to crop the images. We also do it in our mobile also. It trims the image, trims मतलब उस image को crop करके छोटा form बना देते हैं. And the shortcut key is C. Okay, in Adobe Photoshop every shortcut keys don't come get puzzled with the computers. MS Word या MS PowerPoint में हम लोग Ctrl V Ctrl C यूज करते हैं, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना. This is Adobe Photoshop where the alphabets are the shortcut keys to select each and every particular tool. Now slice or side selection tool, select tool. It is used to slice the image into various sections. इसको slice कर देते, जैसे केक पर साइज स्लाइस होता है उस हिसाब से इसको सिलेक्शन टूल जो है, सिलेक्शन टूल में इसको इमेज को स्लाइस कर देते हैं, पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं. एंड द शॉर्टकट की इज K. नेक्स्ट स्पॉट हिलिंग ब्रश पाथ रेड आई टूल. Spot filling brush path red eye tool K, that is shortcut key is J. J is the shortcut key. Now let us see what is spot filling brush tool. Spot filling brush tool, it paints with a sample or pattern to repair imperfection in an image. इसमें क्या करते हैं, एक पेंट विद अ सैंपल और पैटर्न, एक पैटर्न और सैंपल के हिसाब से और जो रिपेयर करते हैं, जो परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन में नहीं है, उस स्पॉट एरियाज को परफेक्ट बनाते हैं. इट इज यूज्ड टू रिमूव wrinkles एंड स्किन blemishes. wrinkles, स्किन के ऊपर स्किन टोन में कोई स्पॉट्स वगैरह है उसको हटाने में ये हेल्प करते हैं स्पॉट फिलिंग ब्रश टूल. जो कोई भी फेस में मतलब स्क्रैच मार्क हो या पिंपल स्पॉट्स हो या कुछ भी हो, wrinkles हो या कोई भी स्पॉट्स हो बॉडी में या कोई में, दैट हेल्प्स टू पर्टिकुलर उस एरिया में जाकर वो इम्परफेक्शन जो है परफेक्ट बना देते हैं. देन कम्स द पथ टूल. इट रिपेयर्स इम्परफेक्शन इन सिलेक्टेड एरिया ऑफ एन इमेज यूजिंग अ सैंपल और अ पैटर्न. यहाँ पे ये भी रिपेयर करता है इम्परफेक्शन सिलेक्टेड एरिया सिलेक्ट कर देते हैं, उस एरिया में उसका जो भी करेक्शन परफेक्शन बनाना है वो बनाते हैं. Then red eye tool. Red eye tool that removes the red eye in a flash photo used with a click. You have seen, जब भी हम लोग फोटो लेते हैं, when we take a picture, we will see that there is a flashlight on. Flashlight are open, the eyes become red. Most of the people have that problem because of the cornea and everything. तो that the eye color जब चेंज हो जाता है तो स्क्रीन में, तो फोटो में तो मतलब रेड हो जाता है, तो उसको रेड आई टूल कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर इमेज में जिस इंसान का रेड आई हुआ है उसका आई हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्ली हम लोग बना सकते हैं. दैट इज द हेल्प ऑफ द रेड आई टूल. ब्रश पेंसिल कलर रिप्लेस टूल. Brush, pencil, color, replace tool. In this tool, the shortcut for these tools we need the shortcut key of B. Brush tool, it paints brush strokes. Brush tool से हम लोग ब्रश की वजह से स्ट्रोक लगा सकते हैं. पेंसिल टूल से हार्ड एजेस को स्ट्रोक लगा के मतलब बाउंड्रीज वगैरह स्ट्रोक करने में हेल्प करते हैं. कलर रिप्लेस टूल, इट सब्स्टिट्यूट्स वन कलर फ्रॉम अनदर. एक कलर की जगह पे दूसरे कलर अप्लाई करना. दैट हेल्प्स टू कलर रिप्लेस. कलर रिप्लेस मतलब जो कलर था उसको चेंज करके दूसरे कलर ला सकते हैं. नेक्स्ट कलर स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प टूल. दैट इज द S. दैट शॉर्टकट की इज S. कलर स्टैम्प टूल, इट पेंट्स विद द सैंपल ऑफ एन इमेज. ये जो पेंट होता है एक सैंपल ले लेते हैं इमेज के, उस हिसाब से वो पेंट करते हैं. इट बेसिकली यूज्ड फॉर कलरिंग और कॉपिंग वन एरिया ऑफ एन इमेज onto an other area. एक एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस मतलब एक एरिया पर्टिकुलर इसका कॉपी दूसरे इमेज में हो रहा है. मतलब फॉर कॉपिंग, वन वर्ड वी कैन से कॉपिंग फ्रॉम वन इमेज इनटू अनदर इमेज. पैटर्न सैंपल टूल. Pattern stamp tool. It paints with a part of an image as a pattern. Pattern के हिसाब से इमेज को कलर करते हैं, पेंट करते हैं. हिस्ट्री और आर्ट
history brush tool. History brush tool, that shortcut key is Y. History brush tool, it paints a copy of a selected slate or snapshot into the current image window. It paints a copy of a selected slate. ये selected state का copy लेते हैं, snapshot लेते हैं and correct the image window. Image window में जो correction करना है उस हिसाब से correct करते हैं. Art history brush tool. इस art history brush tool में क्या होता है? It paints stylish strokes that simulate the look of the different paint style using selected slate or snapshot. जो selected slate और snapshot है उसको उसके हिसाब से उसको पेंट करते हैं. उसमें क्या होता है? हिस्ट्री ब्रश शॉट में क्या है? पेंट द कॉपी सिलेक्टेड टूल एंड करेक्ट करते हैं. यहाँ पे दूसरे एक पेंट फॉर्म कर रहे हैं. इरेज बैकग्राउंड इरेजर बैकग्राउंड इरेजर मैजिक इरेजर टूल. फॉर दैट वी आर यूजिंग द शॉर्टकट की ई. इरेज टूल इट इरेज पिक्सल. इसको पिक्सल को इरेज करते हैं. रिस्टोर द पार्ट ऑफ एन इमेज इन द प्रीवियस सेव स्टेट. मतलब इसको प्रीवियसली जिस हिसाब से सेव किया था उस हिसाब से उसको रिस्टोर करते हैं. बैकग्राउंड इरेज टूल. बैकग्राउंड इरेज टूल इट इरेज एरिया टू ट्रांसपेरेंसी बाय ड्रैगिंग. बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड इरेज टूल में क्या होता है? इरेज द बैक एंड ट्रांसपेरेंसी. एक ट्रांसपेरेंसी फॉर्म करते हैं बाय द ड्रैगिंग. ड्रैगिंग के हेल्प से एक ट्रांसपेरेंसी फॉर्म होता है. मैजिक इरेजर टूल इट इरेज सॉलिड color area to transparent with a single click. सॉलिड कलर जहां पे है उस एरिया को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए मैजिक इरेजर टूल यूज होता है. देन पेंट बकेट या ग्रेडियंट टूल. फॉर दैट शॉर्टकट की इज G. पेंट बकेट टूल इट फिल्स सिमिलर कलर एरिया विद द फोरग्राउंड कलर. सिमिलर कलर एरिया विद द फोरग्राउंड कलर. फोरग्राउंड कलर का जो कलर है उस हिसाब से पेंट बकेट टूल में कलर, मतलब जो कलर हम लोग सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो कलर कर देगा. ग्रेनाइट टूल इट क्रिएट्स अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन रेडिकल एंगल रिफ्लेक्टेड डायमंड ब्लेंडेड बिटवीन डिफरेंट कलर्स. ग्रेडियंट टूल क्या है? ग्रेडियंट टूल में हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेडियंट टूल में हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट स्ट्रोक, बेसिकली वी कैन पुट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सॉर्ट ऑफ थिंग. एक मतलब इसको सॉलिड कलर नहीं होगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर शेप्स एंगल्स में उस कलर की बेस करके दूसरा कलर रह सकता है. नेक्स्ट ब्लर शार्पन smudge tool. The shortcut key is R. Okay, blur tool it blur hardened edge in the image. जो blur कर देते हैं इमेज को, थोड़ा blur कर देते हैं. Sharpen the soft edges जो है मतलब लग रहा है soft है उसको थोड़ा sharpen मतलब तो उसको sharpen बना देते हैं. Smudge tool it smudge the data in an image. Smudge कर देते हैं थोड़ा सा वो क्या smudge obviously the girls those who do makeups and all hopefully they can understand the smudge thing. उसको थोड़ा फैला देते हैं, थोड़ा smudge कर देते हैं. Then dodge, burn and spongy tool. For that you need the shortcut key is O. Dodge tool it's lighten the area of an image. Dodge tool में क्या है? lighten कर देते हैं इमेज का जो एरिया है तो उसको lighten कर देते हैं. Then burn tool it darken the area of an image. वो क्या करते हैं? darken कर देते हैं, dark बना देते हैं. Next the sponge tool it change the color saturation of the area. color saturate करते हैं particular area का. Next pen path tool is the shortcut key is P. They draw smooth edges path. एक path draw करने में help करते हैं. Type या type marks tool. The shortcut key is T. It creates type of an image. It creates a type of an image. Type marks tool. It creates a selection type, horizontal or vertical. ये select करते हैं vertically या horizontally. Next, path selection or direct selection tool, which is shortcut key is A. Path selection tool. It makes shapes or
सेगमेंट सिलेक्शन शावर शोइंग एंकर पॉइंट, एक एंकर पॉइंट शो करता है, डायरेक्ट लाइन और डायरेक्शन पॉइंट, एक पाथ फॉर्म करता है, उस हिसाब से वो सिलेक्ट होता है। कस्टम शेप टूल, दे मेक कस्टमाइज शेप सिलेक्ट फ्रॉम अ कस्टम शेप लाइन। उसको कस्टम शेप मतलब जो शेप नहीं है उस शेप की तुम एक अपने से शेप बना के उसको सिलेक्ट कर सकते हो। Annotation tool, they makes notes and audio and notation that can be attached to an image। कोई नोट कोई ऑडियो उसको इमेज के साथ अटैच हो सकते हैं। The shortcut key is N। eyedropper, color sampler measure या counter tool, the shortcut key is I। they use to select colors, कलर सिलेक्ट करने में दे अलाउ यू टू मेक सैंपल ऑफ द कलर्स फ्रॉम इमेजेस। ओके, ये क्या करते हैं हम लोग, कलर जो है उसका सैंपल लेके एक कलर जो पर्टिकुलर काम करेगा या नहीं वो हम लोग चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एवरीथिंग। दैट शॉर्टकट की इज आई। देन हैंड टूल, द शॉर्टकट की इज H। इट्स एनेबल यू टू मूव द इमेज एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। हैंड टूल में क्या करते हैं हम लोग उसको स्क्रीन के कोई भी एरिया पे हम लोग उसको मूव करा सकते हैं। जूम टूल, इट हेल्प्स यू टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज। ऑब्वियसली जूम टूल से बोलने से मतलब जूम कर देते हैं इमेज को, उसका जो मैग्निफिकेशन है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। देन foreground color tool, foreground color, it helps to select the foreground color of the image। foreground जो है उस ग्राउंड का इमेज सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। Then background color tool, it helps you to set the background color of an image। foreground मतलब सामने का, background पीछे का, तो background का कलर सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। Standard display या quick mask display mode tool, which is the shortcut key is Q। it helps you to edit the image in a quick mask mode। ये हेल्प करते हैं edit in a quick mask mode। Screen display mode tool, the shortcut key is F। it shows the image in a different mode। ये different mode में image को show करते हैं। Now how to create a file, वहां पे फाइल हम लोग कैसे create कर सकते हैं। For that, to create a new Photoshop image file, perform the following steps। हम लोग को कुछ steps follow करना है। For that, क्लिक ऑन द फाइल मेनू। हम लोग क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा फाइल मेनू पे। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, वहां पे न्यू ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अ न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। स्पेसिफाई विद नेम, साइज, रेजोल्यूशन, बैकग्राउंड कंटेंट, कलर मोड एज शोन बिलो। पिक्चर ऑब्जर्व करते जाओगे, जैसे मैं मेरा ऑडियो वीडियो देखोगे उसके साथ साथ तुम बुक को भी फॉलो करते जाओगे। In page number 93 there is a specific image। वहां पे तुम्हारे नेम मतलब व्हाट फाइल का नेम देना चाहते हो, यू हैव टू सिलेक्ट द साइज ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ द इमेज। रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है, कितना रेजोल्यूशन तो कितना पिक्सल का इमेज होगा। देन कौन सी कलर मोड पे होगा वो भी सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन, यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन एंड योर फाइल विल बी क्रिएटेड। ओके, now we are going to do with some of the tools of Photoshop CS3। The common used tools in Photoshop CS3 are marquee selection, lasso, move, quick selection, magic wand, flip, rotate, crop, brush, erase and type tool। These are the most commonly used tools। So we will go with the how to apply these tools in our Photoshop। Okay, so first, marquee selection tool। Marquee selection tool helps to select a rectangular or elliptical area of an image। To select a rectangular or elliptical area of an image, perform the following shape। File menu, click on the open option। The open dialog box appears। Okay,
open button. Select the file, जो भी फाइल तुमको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करो. Then click on the open button. Right click on the mark to selection tool. उसके बाद राइट हैंड साइड में राइट क्लिक करना है हम लोग को किसमें, मार्क टू सिलेक्शन टूल में. सिलेक्ट द डिजायर मार्क टू. हम लोग को डिजायर मार्क टू जो वहां पे बहुत सारे शेप्स है उसमें जो शेप हम लोग को पसंद है उस सिलेक्ट करो. नाउ ड्रैग द माउस ओवर द इमेज टू द सिलेक्ट to get the selection. अब उसको सिलेक्ट करने के बाद माउस को ड्रैग करोगे तो you can understand that your image have been selected and that is being moved. Okay. Now comes lasso tool. The lasso tool helps to select an irregular shape area of an image. Irregular कोई भी specifically shape नहीं है, irregular shape में होता है. To select an area of an image. कोई भी image का area select करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? First of all, you have to open an image that is common. Then click on the lasso tool. उसके बाद lasso tool में क्लिक करना है. अब required lasso tool वहाँ पे आ जाएगा. Drag जो भी तुम्हारा required lasso tool उस हिसाब से तुम उसको draw करो. Drag the mouse over the portion of your image. वहाँ से drag करोगे. You can see your image have been selected. Okay. Now comes the move tool. The move tool enables you to move a selected portion of an image. Selected portion जो भी है उसको move करने में help करता है. To use move tool, perform the following steps. Select the portion of an image you want to select tool. Select करो जो उस portion को मतलब it can be with the marquee selection tool or it can be with the lasso tool. उसको select करो. Then click on the move tool. You have to go to the move tool and click inside the selected portion and drag it will required position. अब उसके अंदर जाके उसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो रिक्वायर्ड पोजीशन पे जहां पे तुमको चाहिए उस एरिया पे वो चला जाएगा. नेक्स्ट कम्स क्विक सिलेक्ट मैजिक वैन टूल. द क्विक सिलेक्ट या मैजिक वैन टूल हेल्प्स टू सिलेक्ट अ सिमिलर कलर्ड एरिया ऑफ एन इमेज. सिमिलर कलर एरिया ऑफ एन इमेज सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. To use selection tool या magic wand tool, perform the following steps. For that, you have to perform the following steps. Click on the magic quick selection या magic wand tool. दोनों ऑप्शन है उसमें से जो तुमको दोनों ऑप्शन में सेम नेम है उसको सिलेक्ट करो. Click anywhere on the colored portion. Click anywhere of the colored portion of your image. इमेज के जो भी कलर पोर्शन है उसमें सिलेक्ट करो. यू वांट टू सिलेक्ट जहां पे तुम चाहते हो. द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द इमेज इज सिलेक्टेड. जहां पे रिक्वायर्ड पोर्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट फ्लिप एंड रोटेट. फ्लिप मींस मेक अ मिरर इमेज. फ्लिप मींस मान के चलो ये है फ्लिप इमेज मतलब एग्जैक्टली कार्डोन कॉपी ऑफ अ मिरर इमेज हम लोग कह सकते हैं. Of a selected portion of your image, you can rotate the selected part of an angle. तो जो selected part है उसको एक angle तक तुम rotate करा सकते हो. To flip or rotate portion of an image, perform the following steps. हम लोग उसके लिए कुछ perform steps follow करना है. Select the portion of an image. Obviously, you have to select the portion of an image is using any one of the image, use any one of the selection tool. इमेज के कोई भी एरिया सिलेक्ट करो उसके लिए कोई भी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो. क्लिक ऑन द एडिट मेनू. वहां पे हम लोग कहां पे जाना है, एडिट मेनू में सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन. वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन है. सिलेक्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टल. फ्लिप हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करने से सिलेक्ट करना है तो तुम्हारा जो सिलेक्टेड एरिया वो फ्लिप हो जाएगा. नेक्स्ट टू रोटेट एंड सिलेक्शन. टू रोटेट सिलेक्शन जो सब सिलेक्ट किया उसको रोटेट करने के लिए यू कैन रोटेट, चूज रोटेट ऑप्शन. देन रोटेट 180, 90, CW और 90 CCW जिस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर दो उस हिसाब से वो रोटेट हो जाएगा. ओके. नाउ crop tool. Crop tool it helps you to crop the image. Crop means to cut a short some part of the image. Short or some part of the image. The crop tool enables you to crop the image. It enables you to crop the image. To crop an image, perform the following steps.
स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लिक ऑन क्रॉप टूल, यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रॉप टूल, क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्ट पोर्शन, क्रॉप टूल से क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ इमेज यू वांट टू क्रॉप। अब उसको क्लिक करके ड्रैग करोगे जहां तक तुमको क्रॉप करना है, देन प्रेस द एंटर की, तो उसके बाद तुम प्रेस करोगे एंटर की, योर इमेज विल बी क्रॉप्ड। नेक्स्ट, brush tool. What is the use of brush tool? The brush tool helps you to color with a smooth edge. Smooth edge में कलर करने में हेल्प करते हैं। To use brush tool, perform the following steps. Brush tool के लिए स्टेप्स जो है वो उसको फॉलो करना है। Click on brush tool. उसके लिए सबसे पहले हमें brush tool में क्लिक करना है। Select the preset size style from the option bar. Option bar में preset size वाला है to brush है, उसको सिलेक्ट करो। ड्रैग ओवर द इमेज टू ड्रॉ अ स्ट्रोक, ड्रैग इमेज के ऊपर ड्रैग करोगे तो वो ड्रॉ होते जाएगा, तो ब्रश टूल का जो भी कलर है उस हिसाब से वो कलर होते जाएगा। नेक्स्ट, इरेजर टूल। इरेजर टूल हेल्प्स टू इरेज अ पार्ट ऑफ एन इमेज। ऑब्वियसली इरेजर टूल से हम लोग को कोई भी पार्ट ऑफ द इमेज वी कैन इरेज इट, पर उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स करना पड़ेगा। टू क्लिक ऑन इरेजर टूल, हम लोग को सबसे पहले इरेजर टूल पे क्लिक करना है, देन सिलेक्ट द टाइप ऑफ इरेजर फ्रॉम द लिस्ट। उस हिसाब से हम लोग टाइप सिलेक्ट करें कौन सी टाइप की इरेजर हम लोग को चाहिए। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द इमेज टू इरेज। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करना है और ड्रैग करना है द माउस ओवर द इमेज टू द इरेजर। इरेजर के हिसाब से मतलब तुमको जहां जहां इरेज करना है उस हिसाब से तुम उसको ड्रैग करते जाओगे, तुम्हारे इरेजर इरेज करते जाएगा। Next, type tool. The type tool helps you to add text in your Photoshop file. ये type tool क्या करता है? Add text in the Photoshop file. To add text in your Photoshop file, perform the following steps. You can change the font style, size, color, etc. using option bar. To हम लोग टाइप टूल में क्या टाइप कर सकते हैं, क्या टाइप कर सकते हैं? टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो टाइप टूल में हम लोग सिलेक्ट करके कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग फोटोशॉप फाइल पे। उसके साथ साथ हम लोग उसका साइज, कलर, स्टाइल वो भी चेंज कर सकते हैं विद गोइंग टू द ऑप्शन बार। बट बिफोर दैट क्लिक ऑन द टाइप टूल। हम लोग को टाइप टूल पे जाना है, क्लिक इनसाइड द कैनवस एंड टाइप द टेक्स्ट। टाइप टूल पे क्लिक करके फिर कैनवस मतलब जहां पे हम लोग का फोटो है वहां पे जाके हम लोग को टाइप करना स्टार्ट करना है। क्लिक करना है इनसाइड द कैनवस और वहां पे बाद उसको टाइप करना है। नाउ कम्स हाउ टू सेव अ फाइल। नाउ वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर। सेव अ फाइल, सेव कैसे करना है, इतना कुछ करने के बाद हम लोग को सेव कैसे करना है। वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेनू, वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेनू। A menu appears, the file as dialog box, file as dialog box appear होता है। Click on save as option, you have to click on the save as option, give the name to the file, file का नाम दो and click on save button। उसके बाद click on the save button। obviously जैसे हम लोग बाकी सारी चीज सेव करते हैं वैसे इसको भी सेव हो जाएगा। Now opening an existing file, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने में पहले से हम लोग फोटोशॉप करके रखा है उसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द फाइल मेनू, मेनू अपीयर्स, सिलेक्ट ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन क्लिक सिलेक्ट करना है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इमेज और फाइल लुकिंग इन द बॉक्स एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड फाइल। वहां पे फाइल ऑप्शन ओपन हो जाता है, वहां पे बहुत सारी फाइल्स होते हैं, उसमें से जो फाइल तुमको चाहिए, जो इमेज का फाइल तुमको चाहिए उसको सिलेक्ट करो and click on the open dialog box। उसके बाद क्लिक करो in the open dialog box। and this is the end of this chapter, so you have to read this chapter very carefully, okay? and जो activity है book के अंदर, I think one activity is there, it's page number 93। do that activity and read the chapter, do the rapid fire question answers, do it। If you have any doubt from this chapter, you will ask me in the group. But before that, read the chapter very carefully. Okay? And that is all for today.
Okay, one more activity is there in page number 100. That also you will do. Till then, bye students and have a great day.